Hello everyone, how are you all? I hope everybody is fine. Students, today we are going to start a new chapter of class 7 science, that is chapter number 15, and name of chapter is light. And this light is not a new word for us. Class 7 we already had discussed about light in 6th standard, isn't it? Students, today we will discuss about light and its basic phenomena. Students, as we heard the word light, lots of objects comes under our mind. And what are they? A shiny sun, a brightening moon, and lots of bulbs, tube lights, fluorescent bulbs, LED, isn't it? Students, you know that on the basis of that light producing, we divide the objects into luminous and non-luminous. हमने क्लास 6 में पढ़ा है ना. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट एमिट करते हैं, लाइक योर सन, स्टार्स, isn't it? Your bulbs, tube lights एंड नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं? जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है बट वो दूसरों की लाइट से चमकते हैं, लाइक मून. मून बहुत चमकता है ना आसमान में, बट इट इज़ नॉट हैविंग इट्स ओन लाइट. ये किसकी वजह से चमकता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द sun's light, that is sunlight. Clear everybody? So students, in today's video we are going to discuss about what is light first, and second we will discuss about the very important part of this chapter, that is the reflection of light. Clear? This is very important. And after that we will discuss a small topic like what is an image, types of image, and a very interesting topic, that is literal inversion. Okay? अब इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि what is literal inversion, ऐसा कोई टॉपिक हमारी बुक में नहीं है. Yes, we are having, but it is having another name, that is right or left. And at the end of this video we will discuss about the spherical mirrors and we will discuss about it. Okay? So student, when we just talk about the light, just have a look on the following pictures. You might have seen a beam of light when it comes from a hole into a room. Okay? और आपने देखा होगा कि वो लाइट आती कैसे है. Clear? It comes just like a beam of light. You might have seen the headlights of your scooter, car, or your engine. It also comes like this, just like a beam of light. और आप लोगों ने मूवीज़ में लाइट हाउसेस देखे होंगे, ठीक है? अब उनकी भी लाइट कैसे आती है? ऐसे, जस्ट लाइक अ बीम. सो स्टूडेंट्स, ऑल दीज पिक्चर्स आर शोइंग दैट कि लाइट कम्स इन अ पर्टिकुलर path. It travels in a particular path. To understand it more, let's do a activity. What you have to do, student, you have to just take a bent pipe, a straight pipe, and a candle. अब आपको क्या करना है बच्चा? You have to just observe this candle's flame with the help of your pipes. अब हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले हमारे स्ट्रेट पाइप से कैंडल की जो फ्लेम है इसको ऑब्जर्व किया एंड वी आर एबल टू जस्ट सी इट. ठीक है, हमें उस जब हम सीधे पाइप से इसको देखने की कोशिश करते हैं तो हमें वो फ्लेम अच्छे से नजर आती है. बट व्हेन वी आर जस्ट ट्राइंग टू ऑब्जर्व दिस फ्लेम विद द हेल्प ऑफ दिस बेंट पाइप, is it possible for us to observe that flame? Not exactly. So student, on the basis of given pictures and this activity, we can conclude that कि light travels along a straight line. Clear everybody? समझ में आ गया? अच्छा स्टूडेंट, अब मुझे एक चीज़ बताइए कि जब कभी भी लाइट किसी साइनी सरफेस पे गिरती है तो क्या होता है? सोचो, आपकी जब कभी भी लाइट किसी आपके नए नए घर में मम्मा कोई बर्तन लाई है उस पे गिरती है तो क्या होता है, या आपके घर में सिंपल आपका जो मिरर है उस पे गिरती है तो क्या होता है? बताओ मुझे. क्या आपको कोई इमेज नज़र आती है? क्या आप कोई ऑब्जर्वेशन नोटिस करते हैं? स्टूडेंट्स, what happened exactly? This is the reflection of light. Clear everybody? अब what is that reflection बच्चा? One way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. Clear everybody? A shining surface of a stainless plate, of a just shining spoon. It is all that
चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब कभी भी आप किसी चमकीली चीज़ में अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं या किसी भी चीज़ को, तो आपको उसके अंदर है ना रिफ्लेक्शन नज़र आता है। क्लियर एवरीबॉडी? सो स्टूडेंट्स, यू माइट हैव सीन कि वेन एवर यू आर क्रॉसिंग फ्रॉम अ रिवर और अ पॉन्ड और अ लेक, आपको जो आसपास के एरिया में जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं या बिल्डिंग्स हैं, वो भी आपको उस पानी के अंदर उनका रिफ्लेक्शन नज़र आता है। Clear everybody? So students, the surface of water can also act like a mirror, and it's changed the path of light, and that's why it is possible for us that we can see the reflection of these objects. Either they are plant, they are building in water, and here water is behaving like a mirror. Okay. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पंचतंत्र की बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये वाली भी है। अब पिक्चर को देख के आपको दिमाग में आ रहा है कि ये स्टोरी क्या था। ये था कि एक जंगल में एक शेर आ जाता है और वो अपने आप को कहता है कि नहीं, मैं इस जंगल का राजा हूँ। अब वहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं, जंगल के जितने भी जानवर होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई इससे पीछा कैसे छुड़ाएं। तब वहाँ पर एक स्मार्ट जो रैबिट होता है वो बोलता है कि नहीं, तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर और तुमसे भी ज़्यादा एक और बड़ा शेर है इस जंगल में जो इस कुएं में रहता है। क्लियर एवरीबॉडी? रैबिट उसको वहाँ लेके जाता है और जैसे ही वो कुएं के पास आता है, एज आई टोल्ड यू दैट the still water always behave like a mirror, so it will give the reflection. Same here. जब ये इस कुएं में ऐसे देखता है तो इसको उस पानी पे क्या नजर आता है? अपना रिफ्लेक्शन। जो ये करता है वही वो शेर करता है। तो इसको क्या लगता है कि हाँ, यहाँ तो इस कुएं में तो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग, मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर एक लॉयन ऑलरेडी है। तो हो सकता है कि ही इज़ द किंग ऑफ द जंगल। Clear everybody? So student, here is the reflection of lion in water. So students, what is reflection and how all the shining surfaces behave like a mirror? Any polished or shiny surface, it can act as a mirror. अच्छा, अब होता क्या है? What happen when a light falls on a mirror? It gives you the reflection. Clear everybody? And what is reflection? Reflection of light can be defined as the phenomena of an object throws back the light that falls on it. इसको ऐसे समझो, देखो ये एक प्लेन सरफेस है, आपकी लाइट आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज योर द लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट एंड इट स्ट्राइक हेयर, और जैसे ही किसी शाइनी सरफेस से ये स्ट्राइक करती है वो सरफेस इसको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लियर एवरीबॉडी? सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन. Okay, hence the reflection of light changes its path. Clear everybody? Students, let's do an activity to understand it in a better way. What we have to do, we have to take a torch, a plain mirror and a simple board. अब हमने क्या किया, जो हमारा simple board है, we covered with the chart paper. Clear everybody? So that it is possible for us that we can easily observe the whatever the happening here. Okay, what you have to do first you have to cover your torch glass with a paper and you have to make 3 narrow slits. आपको ऐसी पतली पतली slits बना देनी है जो आपकी टॉर्च के सामने वाला ग्लास होता है उसके ऊपर, और उसको कवर कर देना है। बच्चा, अब इसके सामने ही आपको आपका जो प्लेन मिरर है वो आपको ऐसे वर्टिकली रख देना है। जैसे ही आप टॉर्च को ऑन करते हैं, यू जस्ट ऑब्जर्व दैट कि लाइट्स आर कमिंग फ्रॉम द 3 नैरो स्लिट्स. Clear everybody? And student, you know that whenever the lights falls on a shining surface on a plane mirror, it gets reflect. Students, you might seen that like this, you can observe the reflection of light. Now you have to adjust both the source of light or the mirror in such a way that the reflected light can make a angle. Clear everybody?
समझ में आ रहा है? एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन यू एडजस्ट इट यू विल ऑब्जर्व दैट द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट दैट इज योर टॉर्च, इट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। अब आपको कांच के अंदर से नजर आएंगी ये रिफ्लेक्टेड मिरर, क्यों? क्योंकि ये आपको किस पे भी नजर आ रही है, ये आपको आपके इसके चार्ट पेपर भी नजर आ रही है। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी conclude that this activity shows that कि light get reflected from a plane mirror। अब हमारे पास just because of reflection बहुत सारी images भी बनती हैं। Let's understand those। अब कैसे करें? First again we have to take a candle, we will light it and we are doing again our activity with the plane mirror। अब बच्चा आपको क्या करना है? आपको एक बिल्कुल प्लेन बोर्ड लेना है, उसके ऊपर आपके मिरर को ऐसे रखना है और इसके सामने आपकी जलती हुई कैंडल रखनी है। स्टूडेंट्स, एज यू स्टार्ट डूइंग दिस एक्टिविटी यू विल ऑब्जर्व द रिफ्लेक्शन ऑफ योर कैंडल इन मिरर। क्लियर एवरीबडी? हियर यू आर ऑब्जर्विंग द reflection of that candle. Students, actually this reflection that you are just watching in that mirror is the image which is formed behind the mirror. Clear everybody? समझ में आ गया? Students, here the candle which appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror and here the candle is ऑब्जेक्ट। आपने जैसे ही कैंडल को इसके सामने रखा बच्चा, आपको कैंडल नजर आती है जैसे आप खुद अपना फेस देखते हैं कांच के अंदर। सेम हियर व्हेन यू ऑब्जर्व दिस रिफ्लेक्शन इन द मिरर, इट इज व्हाट? इट इज द इमेज ऑफ द कैंडल ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कैंडल ही क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज द इमेज विच इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। क्लियर एवरीबडी? अब स्टूडेंट, हमने क्या किया, हमारे इस मिरर के पीछे एक स्क्रीन लगा दी। स्क्रीन क्या होता है? कोई भी पर्दा लगा देना, ठीक है, जिसपे हमें क्या करना है, हमारी जो इमेज है वो देखनी है। आप लोगों के स्कूल्स में प्रोजेक्टर्स होते हैं, जब प्रोजेक्टर्स हमारे चलाए जाते हैं तो हमारे सामने एक स्क्रीन लगाई जाती है जिसमें हमें इमेजेस नजर आती हैं। Just like that you have to just put a screen behind the mirror and now you have to adjust your candle or your mirror so that you can observe that image on that screen। Students, हम कितनी ही adjustment कर लें but finally we are not able to get that image। Clear everybody? हमें ऐसी कोई भी image नहीं मिलती है। सो स्टूडेंट्स, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर हियर इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधी। क्लियर एवरीबडी? एंड इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ पर जो कैंडल जितनी दिख रही थी वो सेम की सेम आपको मिरर में वैसे ही दिख रही है। इसका फ्लेम ऊपर की तरफ है तो आपको फ्लेम मिरर के अंदर भी फ्लेम ऊपर की तरफ ही नजर आ रहा है। Clear everybody? We can understand it like the head and toe. Okay? So, by the plane mirror, we are observing that the image that is formed, it is erect and it is the same size of the object which is placed in front of the mirror. Clear everybody? Students, now understand again what is image, what are the types of image. We can say that rays of light from an object after reflection by a mirror tends to coverage or appear to diverge from a certain point in front of मिरर। यहाँ देखो, आपने कैंडल सामने रख रखी थी, जैसे ही जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर आकर आपको आपका ये जो कैंडल का इमेज है, ये जो रिफ्लेक्शन है, ये नज़र आता है और ये रिफ्लेक्शन ही क्या है? दैट इज द इमेज विच इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द mirror. So students, at the point the reproduction of the object is called an image and this image is classified into two type, real and virtual. अब real image can be viewed on a screen. Just आपने एक पर्दा लगाया, उस पर्दे पर अगर आपको कोई image मिलती है तो वो होती है
रियल इमेज, और वो इमेज जो हम हमारी स्क्रीन पे नहीं ले सकते, हमें हमारी स्क्रीन पे नहीं दिखाई देती हैं, दे आर नोन एज वर्चुअल इमेज। क्लियर एवरीबॉडी? रियल वो होती हैं जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देती हैं, और वर्चुअल वो होती हैं जो हमें हमारी स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती, हम उनको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स, अब हम एक चीज़ को और जस्टिफाई करते हैं। वी ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि जो इमेज बनती है उसका डिस्टेंस उतना ही होता है जितना कि ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच में उतना ही डिस्टेंस, इमेज में भी उतना ही डिस्टेंस होगा। इसको जस्टिफाई करने के लिए लेट्स डू अ एक्टिविटी। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट टेक अ चेस बोर्ड, सबके पास होगा, इट्स वेरी इजी एक्टिविटी, और आपको अपना एक प्लेन मिरर ऐसे सेट करना है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, चेस बोर्ड में आपको इजीली बहुत सारे चेक्स नज़र आते हैं। यू हैव टू टेक एनी ऑब्जेक्ट, यू कैन टेक योर इरेजर, शार्पनर, पेंसिल। अब आपने क्या किया, कितनी कैसे भी काउंटिंग करके और अपने ऑब्जेक्ट को इस मिरर के सामने रख दो। सपोज करो कि हमने यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा। क्लियर एवरीबॉडी? और हमने आगे से भी काउंट कर लिया कि हमने इस पोजीशन पे हमारे ऑब्जेक्ट को रखा। नाउ यू कैन सी दैट द इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर, क्लियर एवरीबॉडी, इट इज ऑल्सो हैविंग द सेम डिस्टेंस। फिर हमने क्या किया, हमारे शार्पनर को यहां से उठाया और हमने यहां रखा। Now again you will observe the same distance in the mirror that you are changing here. So students, आप खुद एक बार कांच में करके देखो कि जैसे जैसे आप कांच से पीछे जाते जाते हैं, जो आपको आपके मिरर में नज़र आता है वो वही नज़र आता है जो आप कर रहे हैं। Clear everybody? So students, the image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. आप कांच के आप मिरर के सामने जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपके मिरर के बिहाइंड भी वो ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पर नजर आएगा। क्लियर एवरीबॉडी? जब भी प्लेन मिरर से कोई इमेज बनती है तो वो सेम डिस्टेंस पे बनती है जैसा कि आप मिरर के सामने उस ऑब्जेक्ट को रखते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं लेटरल इन्वर्जन, और वी कैन से इट राइट और लेफ्ट। अब इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्टिविटी करते हैं। सब लोगों ने अपने आप को मिरर में देखा है ना? अब आप कहेंगे मैम अभी तो आपने बताया कि बिल्कुल हाँ, हम हूबहू दिखते हैं, सेम एज इट इज, बट कुछ चेंज होता है। क्या चेंज होता है? जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, व्हेन यू रेज योर राइट हैंड, it appears your left hand in the mirror. When you just touch your right hand with your right ear, it appears that you are touching your left ear with your left hand. Isn't it? ऐसा ही कुछ दिखता है। When you see your image in a plain mirror, is it exactly like you? No, it is not exactly like that we are. Here, left hand appears on the right side in the image. Clear everybody? So, we can say that we find that in the mirror, the right appears the left and left appears the right. समझ में आया? जो सीधा है वो इमेज में उल्टा नज़र आता है, और जो उल्टा है वो इमेज में ऑब्जेक्ट का सीधा नज़र आता है। Only sides are interchanged. The image does not appear upside down. Clear everybody? Students, the images which we are getting from the plane mirror all goes under lateral inversion. और इस lateral inversion का मतलब ही क्या है? That the right side of the object appears left in the image. Okay, the right side of objects appears as a left side in the image, and it is very important, class 7th, remember it. And you might have seen the ambulance vehicle, ambulance van, उसमें आपने देखा होगा कि ambulance ऐसे लिखा होता है। फाइन एवरीबॉडी? और हम ये एम्बुलेंस ऐसे क्यों लिखते हैं?
वो इसलिए लिखते हैं कि बच्चा कि जो सामने वाला जो व्हीकल जा रहा है, अगर उसके पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो उसको अपने उस मिरर के अंदर ये जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है ये करेक्ट ऑर्डर में नज़र आए। समझ में आया? क्यों? क्योंकि जो प्लेन मिरर है वो क्या शो, उसमें जो इमेजेस है वो क्या शो करती हैं? लेटरल inversion. Students, that is why the word ambulance is written backwards on an ambulance van, so that it appears in the correct order when viewed on a mirror. Clear everybody? Students, we may say that when the driver of a vehicle ahead of an ambulance look in his or her rear view mirror. समझ में आ गया? जो साइड वाला हमारा कांच होता है. Okay? She can read the ambulance written on it and give way to it. And please, it is our duty कि whenever the ambulance is passing through us, kindly give side. Okay? It is the duty of every one of us to allow an ambulance to pass without blocking its way. Clear everybody? The concept of lateral inversion is clear. Students, let's understand about the spherical mirrors, and for that we will play with spherical mirrors. Okay, students, you might have seen the spoon, and spoon is having two surfaces, inner curved surface and outer curved surface. सब बच्चों ने चम्मच देखी है ना, और सब बच्चों ने inner curved surface और outer curved surface of spoon से इमेजेस भी देखी होंगी कि कैसे इमेजेस बनती हैं. स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि कोई भी साइनी सरफेस जो होता है, आइदर इट इज ऑफ अ स्पून और अ प्लेट, इट एक्ट्स लाइक अ मिरर. Clear everybody? So students, bring the outer side of the spoon near your face and looked into it. ठीक है, सब बच्चे चम्मच को लेके आएंगे और चम्मच का जो बाहर वाला जो कर्व सरफेस है उसमें अपने आप को देखेंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऑब्जर्व करेंगे. डू यू सी योर इमेज इन इट? यस, दिखता है. इज द इमेज डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू सी इन द प्लेन मिरर? यस, लिटिल बिट डिफरेंट. अब वो हम सिंपल ये देखेंगे कि हाँ डिफरेंस है या नहीं है. इज दिस इमेज इरेक्ट? यस, इट इज इरेक्ट. Is the size of the image the same, the smaller or the large? Students, when you observe yourself in the spoon's outer curved surface, you will appear smaller. Clear everybody? Fine. Student, अब आप क्या करेंगे? अब आप अपने आप को या किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पून के इनवर्ड जो कर्व्ड सरफेस है उससे ऑब्जर्व करेंगे. When we look at the image using the inner side of the spoon, this time we may find, देखो, we may find that our image is erect and larger in size. Clear everybody? If we increase the distance of a spoon from our face, we may see our image inverted, जैसा कि आपके इस वाले पिक्चर में दिखाया गया है. अगर हम स्पून से हमारे फेस का डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारी इमेज है इट मे इन्वर्टेड. Clear everybody? We are not saying it is always, it may. Clear? Students, the curved shining surface of a spoon act as a mirror. Clear everybody? यहाँ पर चम्मच कैसा काम कर रही है? Just like the mirror. Okay? Students, the most common example of a curved mirror is a spherical mirror. अच्छा, अब देखो, हम कब से कर्व्ड सरफेस कह रहे हैं, कर्व्ड मिरर कह रहे हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्पैरिकल मिरर. अब हम कर्व्ड मिरर को स्पैरिकल मिरर क्यों कह रहे हैं बच्चा? अच्छा, इससे पहले एक चीज़ समझो कि आपने क्लास 6 में कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बारे में पढ़ा है. ठीक है, दो तरह के मिरर्स होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर. क्लियर? स्पून का जो आउटर सरफेस है, आउटर कर्व्ड सरफेस है, इट इज बिहेविंग लाइक अ
कॉन्वेक्स मिरर। और स्पून का जो इनर सरफेस है, इनर कर्व्ड सरफेस है, it is behaving like the concave mirror. The inner surface of a spoon act like a concave mirror, while its outer curved surface is act like a convex mirror. Clear everybody? It is just like this. This is your concave and this is your convex. Clear everybody? समझ में आ गया? अब हम इनको स्पैरिकल मिरर क्यों कह रहे हैं? ये तो कर्व्ड है ना बच्चा, ये हम इन कर्व्ड मिरर को स्पैरिकल मिरर इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ अ स्पेयर. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ बॉल. what you have to do with your elders or with the help of your teacher, you have to just try to cut a rubber ball in such a way. ठीक है, जब हम इस रबर बॉल को कट करते हैं बच्चा, तो इस बॉल का ये वाला पार्ट जिसमें जो बाहर का कर्व्ड सरफेस है, इट इज द कॉन्वेक्स सरफेस. और जो अंदर वाला कर्व्ड सरफेस है, जस्ट रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ द स्पून, इट इज द concave surface. Clear everybody? Why are concave and convex mirrors called spherical mirrors? Because they are the part of a sphere. Clear everybody? Spherical जो mirrors होते हैं ये sphere के part होते हैं. ठीक है, just like when you just cut a ball and you observe one of its part, outer one is convex and inner one is concave. Clear everybody? अब देखो बच्चा, इनको समझने की जरूरत है कि कॉन्केव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है. If the reflecting surface of a spherical mirror is concave, it is कॉन्केव मिरर. और अगर किसी भी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है, तो वो मिरर कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर. इमेजेस ध्यान रखो, देखो ये क्या है, हम रिफ्लेक्टिंग वो बनाते हैं किसी भी अगर सरफेस पे, आइदर इट इज लाइक दिस, अगर हम ऐसे कुछ ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स ये नीचे वाला एरिया क्या है, पॉलिश्ड है. दैट मीन्स इट इज बिहेविंग लाइक अ मिरर. दिस इज द प्लेन मिरर. अब ये सरफेस कैसा है, कॉन्केव. अब मैंने इसके ऊपर ये बना दिया, दैट मीन्स इट इज द पॉलिश्ड वन, इट बिकम अ मिरर. सो इट इज अ कॉन्केव मिरर एंड हियर इट इज द कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर एवरीबडी? इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटर वन, एंड इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनर वन. समझ में आ गया? क्लियर एवरीबडी? सबको कंसेप्ट क्लियर है? सो स्टूडेंट, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? व्हाई वी आर कॉलिंग द कर्व्ड मिरर स्फेरिकल मिरर्स? बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर. और किसी भी स्फेरिकल मिरर को कॉन्केव मिरर हम कब करते हैं, जब उसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो क्या होता है, बिहेविंग लाइक अ कॉन्केव मिरर. ओके, और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट कैसा है, कॉन्वेक्स है. सो स्टूडेंट, with this topic today's video ends here, and in the coming video we will understand the images formed by the concave and convex mirror and their uses, and after that we will discuss about the concave and convex lenses. Okay, till then take care everybody and thank you.